امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روح القدس کا بپتسمہ. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پاسٹر درشن اور پاسٹر اسحاق خان پاشا. جو ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر پاشا نے بڑی اچھی گفتگو کی, اپنی شخصی زندگی کے جو تجربات ہیں اس کا ذکر کیا. تو خدا یہ چاہتا ہے روح القدس کا بپتسمہ جو ہے, جس طرح نجات ہمارا شخصی تجربہ ہونا چاہیے, اسی طرح روح القدس کا بپتسمہ بھی ہمیں اس کا شخصی تجربہ ہونا چاہیے. اس پر مزید بات کریں گے پاسٹر درشن سے. جی پاسٹر صاحب, آپ مزید کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں پاسٹر جی ایک اہم پہلو جو ہے جو آج ہم نے کلام مقدس سے آیات مقدسہ پڑھی ہیں, جی جی جی, اس میں ایک اہم بات جو ہے اس کی طرف دھیان لگانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 10واں باب پورا ہے, جی اس کے اگر شروع سے ہم پہلی آیت سے بات شروع کریں جی, تو کرنیلیس نام جو ہے وہ ایک ایماندار ہمیں وہاں نظر آتا ہے, رائٹ, اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صوبیدار تھا. اٹ مین کہ وہ پڑھا لکھا بندہ تھا, بالکل بالکل, اور خیرات بھی بہت دیتا تھا, جی جی جی, راست باز بھی گنا جاتا تھا, دیندار بھی تھا, دیندار بھی, راست باز بھی تھا, راست باز بھی, ہے نا. تو لیکن اس ایکسپیرینس سے وہ ناواقف تھا, واہ واہ, اور یہ اس کی ڈیزائر نہیں تھی بلکہ خدا کی یہ ڈیزائر ہے کہ جو اسے پیار کرتے ہیں, جو ایماندار ہیں اور نیکی کے کام کرنے سے رکتے نہیں ہیں, سیز نہیں ہوتے, واہ, خدا ان کو جو ہے وہ امپاور جو وہ پاک روح سے کرنا چاہتا ہے. کیا بات, کیا بات, کیونکہ یہ نہ تو روپے پیسے سے ملتی ہے, نہ ہمارے کسی سی وی سے ملتی ہے, نہ کسی لیاقت سے ملتی ہے. جی 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 جی, ٹھیک ہے نا جی, ہاں جی, یہ خدا کی بخشش ہے, یہ بخشش ہے اور فری میں ہے, بالکل. اچھا, پانی کا بپتسمہ تو کوئی پاسٹر دے سکتا ہے, لیکن پاک روح کا بپتسمہ دینے والا ایک ہی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح, اور وہ بخشش ہے, فری میں ہے, بخشش ہے, بالکل بالکل بالکل. کیونکہ اعمال کی کتاب میں بھی ہمیں ایک شمعون جادوگر ملتا ہے جی, جو رسولوں کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جو پاور آپ کے پاس ہے وہ ہمیں بھی دو. ایسے ہی, تو وہاں پہ شکر ہے کہ وہ رسولوں نے ایسا کیا نہیں ہے, ورنہ کیا تھا تو اس کی اور دکانداری دکانداری, اور آج کل ہے بھی, جی آج کل مطلب بہت سارے جو ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں جو سٹیمپ لے کے بیگ میں پھر رہے ہیں کہ آپ کو ہم سٹیمپ لگاتے ہیں مختلف عہدوں دینے کے لیے اور بڑے بڑے نام دینے کے لیے, اور وہ ان کے پاس نام تو ہوتا ہے پر ان کے پاس خدا کا کام نہیں ہوتا. یہ بات جو ہے وہ افسوسناک ہے. جی جی, افسوسناک, چونکہ بشارت کو بھی میں دیکھتا ہوں, بشارت بھی تجارت بنی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. جی جی جی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ آج پاسٹر جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عام سا محاورہ ہے کہ اٹ پٹو تھلو پاسٹر نکل آتا ہے. ہاں جی ہاں جی, پر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اٹ پٹیاں تھلو پاسٹر نہیں نکلتا, سیل مین نکلتا. پاسٹر آپ کو کم ہی ملیں گے, پاسٹر آپ کو کم ہی ملیں گے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو خادم تھے یا انبیاء تھے, ایلیا ہے, علیشا ہے, اور بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے جن کے پاس بادشاہ آپ چل کے آیا کرتے تھے. یہ بڑی خاص بات, ٹھیک ہے نا جی. ایک مریض کو شفا دینے کے لیے آپ کار کرا کے لاہور میاں ہسپتال میں, گلاب دیوی ہسپتال میں لے جانے کے لیے 20,000 لگانے کے لیے تیار ہیں, پر پاسٹر کہ تو چل کے ساڑھے کار آ, اس کے پاس اپنے مریض کو لا کر لے کر آنے کے لیے تیار نہیں, اور نہیں آتے تو اس کے اوپر آپ الزام تراشی کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر نہیں ہے. اگر آپ کا یقین ہے, ایمان ہے, تو یہ چل کے آنا کرایہ خرچنا یہ آپ کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم چل کے جاتے ہیں ہماری ذمہ دار تو ہے, ہم نے جانا ہی جانا ہے, بالکل, ہم تو انکاری نہیں ہیں. پر جب آپ خود چل کر آتے ہیں تو آپ کا فیتھ لیول جو وہ انکریز ہوتا ہے. بہت اچھے. وہ 4 آدمی جو مفلوج کو لے کر آئے تھے, ہو سکتا ہے مفلوج کا ایمان نہ ہو, لیکن ان 4 آدمیوں کا ایمان اور یسوع نے وہاں ان کا اقرار بھی کیا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ مطلب یہ بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون پطرس کی جو ہے وہ اس بات سے کنونس ہے کہ خدا جو ہے یسوع مسیح معافی کا اور محبت کا صرف یہودیوں کے لیے ہے, وہ اس بات سے کنونس ہے. لیکن بعد میں 37ویں آیت میں کہتا ہے اب میں جان گیا خدا کسی کا طرفدار نہیں.
बहुत अच्छा। पहले उसकी मतलब ये राय नहीं थी, जी जी जी। पहले वो सिर्फ और ये जब परसेप्शन उसने दे काम देखा मसीह का, हाँ। तो फिर उसने कहा नहीं अब मैं जान जब गया। देखा कि गैर कौमें जो है पाकरू से ममूर हो गई जी। हैं, तब उसने कहा कि अब मैं जान गया, क्योंकि उससे पहले खुदा से कह रहे हैं ये फल खा लो, ये चादर में सामान आया खा जी, लो, जी, जी। और वहां पर वो इस बात का अपनी रास्तबाजी का इजहार करता कि मैंने कभी ये नहीं खाया, नापाक चीज़ नहीं ये तुम्हारा असल में एक बात तो कौमों की कि कौमों खुदा की उनको हो रही है ना, जो कि इनके गैर पैगाम कौम जिनसे नफरत करते हैं, हाँ, बिल्कुल। खुदा उनको ये मैसेज दे रहा है कि जैसे मैं सामरी है, हाँ, सामरियों से कितनी नफरत सबके करते लिए हैं। जी, जी। मुझे पता है 10 करोड़ जो शफा पे उनमें एक जो वापस आया वो सामरी था, जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो वापस आया और यीशु ने उसको मेंशन किया है, नोटिस किया जी, है जी। कि बाकी कितने गए ने, सही। वो उसको मेंशन करता है और उसको मतलब अप्रिशिएट करता है कि तू वाहद है और सामरी होकर गैर कौमे में आकर तू थैंक यू बोलने के लिए आया है। तो मैं समझता हूँ कि पहले पतरस भी फॉरगिवनेस के बारे में और लव ऑफ गॉड के बारे में सिर्फ इस बात तक कायल था कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए जी है। बिल्कुल, क्योंकि ये तासुराम था ना कि निजात ना के यहूदियों में से है बल्कि है यहूदियों के लिए। जैसे यूना को आप देखिए, जी, 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 जब जी। नैनवा के लिए नैनवा बोला के लिए, हाँ जी। है तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आरामी लोग थे और वो बड़े खतरनाक और खतरनाक गैर थे। कौम और बुत परस्त, जी, जी, जी। ठीक है। तो अब मकसद ये है कि ये आम तासर था यहूदियों में कि निजात सिर्फ यहूदियों में से है और है यहूदियों जी 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 जी, और बिल्कुल। किसी के लिए और जी, और किसी किसी लिए के तो पतरस जो है ना वो भी यानी कि इवन इस बात से कायल था, और आज भी बहुत सारे खादमीन जो है, माफ कीजिएगा, उनकी परसेप्शन भी पतरस से गुजारा मतलब वो उस वो वक्त कहते की पता नहीं पेंटिकॉस्टल सिर्फ जुबान पेंटिकॉस्टल जो बात उन्होंने की है ठीक है जी। कि कई दफे पेंटिकॉस्टल नहीं होते, दूसरी डिनोमिनेशन वो भी गैर जुबानें बोल रही होती हैं, और फिर कई दफा ना कुछ इस एंगल से भी मतलब वो बोलते हैं कि जी कोई भी बंदा यीशु को खुदा का बेटा जो है वो उस वक्त तक कह नहीं सकता जब तक वो पाक रूह से मामूर ना हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है नहीं। तो मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि आज बड़ी बड़ी खिदमत हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि किसी न किसी लेवल पर वो खिदमत के काम को लिए हुए हैं। पर उनके लिए एक पैगाम छोटा सा साथ ये भी है कि कोई भी मिनिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, कोई भी मिनिस्ट्री, इट मीन नो मिनिस्ट्री विदाउट होली स्पिरिट इज नॉट अ मिनिस्ट्री। यानी ये मिनिस्ट्री आपकी बेशक वर्शिप मिनिस्ट्री है, बिल्कुल, मतलब प्रिजाइडर हैं, आप प्रिजाइडर हैं, आप प्रस्तार हैं, साथ बजाने वाले हैं, आपकी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, कोई भी इवन यानी कि आप तलीम बालगा मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपकी वजह से हीलिंग मिनिस्ट्री है, जितनी भी है ये सारे काम जो हैं दुनिया के लोग भी कर रहे हैं। पर खुदा जो है जिस बात के लिए हमें परफेक्ट जो है, जो एक स्पेसिफिक हमें एडवाइस नहीं कर रहा, हुक्म कर रहा है कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुमने मिनिस्ट्री वर्क के लिए बाहर नहीं निकलना। वाह बिल्कुल ठीक। अमाल पहला बाप 3-4 हुक्मन कहा गया है। एडवाइस जो है वो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया की बहुत सारी बुक्स जो है ना वो नसीहतों से भरी बुक होंगी, पर अंजील जो है वो नसीहतों वाली बुक नहीं है। अंजील जो है ये जिंदगी वाली बुक है, जिंदगी वाली। वाह वाह। जहां आप इसे सिर्फ नसीहत के तौर पे पेश कर रहे हैं, ये नसीहत वाली नहीं है। नसीहतें तो आपको कहीं से मिल जाएंगी। मैं कहता हूं कि इंजील का पैगाम ज़ाब्ता हयात भी है, हाँ, और ज़ाब्ता निजात भी है। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात हो सकता है, हाँ, लेकिन ज़ाब्ता निजात नहीं है। तो इंजील का जो पैगाम है वो ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। बिल्कुल, इब्ने आदम को ढूंढने और निजात देने आया है। और लिखा अब जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो निजात पाएगा। सो इट मीन के कोई भी मिनिस्ट्री जो हम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए पाक रूह की हजूरी, पाक रूह के साथ पाक रूह का बपतिस्मा होना, ममूरी होना, ये इंतहाई ज़रूरी है। और हर खादम की और हर उस खिदमत करने वाले की ये डिज़ायर होनी चाहिए कि पाक रूह मुझे तेरी ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ पास्टर दर्शन, अमाल की किताब में लिखा है जी कि जब उनका चुनाव किया गया ना वहां पर, जब कलीसिया बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, तो लिखा कि 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से, यानी वो रूहानी भी हो और हिकमत वाले भी हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज सिर्फ उन लोगों का चुनाव किया जाए जिनमें स्किल्स होते हैं, जिनमें खूबियां होती हैं, काबिलियत होती है, हम उनका चुनाव कर लेते हैं। ये नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या ये रूह से भी मामूर है कि नहीं। जो आप फरमा रहे हैं कि मिनिस्ट्री कोई भी हो, वो संडे स्कूल टीचर है, वो म्यूजिशियन है, वो तबला नवाज है, वो ड्रमर है, वो गिटार बजाते हैं, वो पास्टर हैं, वो मुबशर है, वो एसोसिएट पास्टर है, व्हाटएवर, आपका कोई भी टाइटल हो सकता है, लेकिन रूह कुद्स की मामूरी के बगैर खिदमत नामुकम्मल है। क्योंकि मैं इस बात को जी कन्विंस भी हूँ और ईमान भी रखता हूँ, और इस बात को ये नहीं कि मैं आलानिया यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए से ये बताना भी चाहता हूँ कि एक पास्टर जो PhD किया हुआ है
یا ایک پاسٹر جس نے ایم فل کیا ہوا ہے یا مطلب جو بھی اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری ہے، اگر اس کے اندر محبت اور پیار یا حلیمی نہیں ہے تو اس سے بہتر وہ پاسٹر جس نے صرف 5 پڑھی ہیں یا 10 پڑھے ہیں لیکن وہ خدا کی اس محبت کو، پیار کو، حلیمی کے ساتھ لوگوں میں بانٹ رہا ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ روح القدس کی جو نعمتیں ہیں وہ تو آپریٹ ہو ری ہیں، لیکن روح القدس کا پھل اور اس کی تصویریں وہ ہمارے اندر ہیں۔ یہ ہم بات کر رہے تھے نا، تو کیونکہ پاک روح کے جو جب پھلوں کی بات لوگ کرتے ہیں تو اس کا تو ایک ہی پھل ہے، ایک ہی ہے۔ ہاں 5ویں باب کی 22ویں آیت میں کہ وہاں لکھا ہے the fruit of spirit، اور طرح سے روح کا پھل، اردو میں روح کا یعنی سنگولر ہے، پلورل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہی تحمل نکلتا ہے، اس سے مہربانیاں نکلتی ہیں، جتنے بھی آگے سارے کے سارے جو اس کے سب ملٹیپل ہیں نا، سب ملٹیپلز ہیں۔ تو اس میں ان کے اسپرٹ بذات خود خدا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں اگر خدا ایک ہے تو اس کا پھل بھی محبت والی بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بھی ہونا جو ہے وہ سب سے اہم اور سب سے انتہائی ضروری ہے۔ اب میں اس بات کو یہاں پر جو ہے وہ آج ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہ اگر ہم خدا کی محبت سے واقف ہیں تو سمجھو ہم یسوع سے بھی واقف ہیں اور خدا سے بھی واقف ہیں، رائٹ۔ اگر ہم جتنی مرضی لمبی چوڑی جی خدمت کی لسٹ لوگوں میں پیش کریں، اچھی بات ہے، ہم خدمتوں کے خلاف نہیں، ہم اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خدمت میکسیمم کرنی چاہیے، پر اس کے ساتھ ہم اس بات کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ اس خدمت کے اندر محبت کا، حلیمی کا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یسوع جیسے پیار بانٹنے کا یہ جو تاثر ہے اور یہ جو جستجو ہے یہ انتہائی ضروری ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو خدمت ہے یسوع مسیح نے میں ایک ویژن اپنا جو ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے میں پیش کرتا ہوں کہ لکھا ہے کہ وی آر دا اوشن آف لو، we are the ocean of love and we believe love is the solution of all problem. Wow, that's good. یعنی یسوع مسیح نے سارے مسئلوں کا حل جو وہ پیار سے کیا ہے، جو ہم فیس کر رہے ہیں اس نے بھی کیے سیم۔ Praise God. Wow. اور یہ جو پیار ہے یہی اسپرٹ ہے جو خدا اپنی اسپرٹ میں سے ہم میں انڈیلتا ہے۔ Praise God. That's good. جیسے وہ پیار ہے زندگی ہے، ویسے وہی زندگی وہی پیار وہ پاک روح کے وسیلے سے وہ ہم میں ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ وہ زندگی جب ہمارے اندر ٹرانسفر ہوگی تو ہم دوسروں کو آگے دے سکیں گے۔ اس لیے اس نے شاگردوں کے ساتھ بڑی حکمن یہ بات کی کہ جب تک یہ نہ آپ کو مل جائے، حالانکہ 3.5 سال انہوں نے بھی یسوع کے ساتھ بڑے قریبی گزارے ہیں، پر پھر بھی کہا کہ جب تک جس کا میں نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں نہ آئے تب تک آپ نے یہودیہ یروشلم سے باہر نہیں نکلنا، یہاں جہاں بیٹھے یہاں بیٹھے رہو، انتظار کرو، جب آپ کو قوت کا لباس مل جائے گا پھر یہاں نہیں بلکہ دنیا کی انتہا تک آگے بڑھنا ٹھہرنا ہے۔ آمین آمین، ونڈرفل۔ سو میں پاسٹر جی اس بات کو یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اگر ہم یہ جو آج کا ٹاپک دیکھیں اعمال 10واں باب، تو اس کی پہلی آیتیں جو ہیں وہاں سے شروع کریں تو کوئی 37 38 34 ایسے آگے جو پڑھنا شروع کریں تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ لکھا ہے پطرس نے زبان کھول کے کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں، میں یہ جو میں 34 ورس پڑھ رہا ہوں 10ویں باب کی، لکھا ہے ہر قوم میں جو خدا سے ڈرتی ہے اور راست بازی کرتی ہے اور اس کو کیا آتا ہے؟ پسند آتا ہے۔ اٹ مین کہ ہماری جو ذمہ داری ہے تمام قوموں کو صرف انجیل سنانا ہے، تانے مینے نہیں۔ جی 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 بالکل ایگزیکٹلی، میں اکثر کہتا ہوں مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، لوگوں بات ہونی چاہیے نا۔ مطلب اگر ہم کسی کو ہرانے کی کوشش پہ تو پھر، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ مناظرے ہراتے ہیں، جی جی جی، مکالمہ جیتتا ہے، جی جی جی، ہمیں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ جی 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 جی، تو میں صرف کہہ رہا ہوں کہ لمبی چوڑی سٹوریاں اور دوسری تیسری مطلب باتیں کرنے کے لیے اگر صرف انجیل ہی سنا دی جائے، اور انجیل کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں، میں اور آپ یعنی میری اور آپ کی گواہی انجیل ہے، چلتی پھرتی انجیل ہے، ہماری گواہی ہی انجیل ہے۔ جی جی بالکل، اگر صرف لوگوں کو ہم انجیل ہی سنا دیں، کیا بات ہے، انجیل ہمارے کردار میں نظر آتی ہے۔ جی یعنی میں جب انونٹنگ کی بات کرتا ہوں تو ایک انٹرنل انونٹنگ ہے، ایک ایکسٹرنل انونٹنگ ہے۔ ایکسٹرنل میں آپ بڑی دھواں دار تقریر کر رہے ہیں، ایکسٹرنل میں دھواں دار دعا ہو رہی ہے، ایکسٹرنل میں ہاتھ ایسا کرتے ہیں لوگ جو شفا پا رہے ہیں، یہ ایکسٹرنل ہے۔ اور یہ کام جادوگر بھی ایون کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ موسیٰ کی لاٹھی کے سامنے دیکھیے، وہاں پر فرعون جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے تھے،
ठीक है। लेकिन मूसा का जो सांप है वो उन पर गालिब आ गया। हालेलुया। ये नहीं, खुदा की कुदरत हमेशा सुपीरियर होती है, सुप्रीम आमीन पावर है। आमीन। बिल्कुल। तो इंटरनल एनाटॉमी में क्या है, वो आपका करैक्टर है, वाह ये आपके करैक्टर को डेवलप करती है। ये वो अंजील है जिसको लोग पढ़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो पाकरू जो है वो सिर्फ हमें एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल जो है वो हमारे बिहेवियर और हमारे करैक्टर के साथ कनेक्टेड है Praise God. कि हम अपने बिहेवियर से अंजील को पेश करें। Amen. और इस अंजील को पढ़ने के बाद जो है लोग खुद ब खुद यीशु को कबूल करते हैं और आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो जाते हैं। Amen. Wonderful. Thank you जनाब पास्टर दर्शन मसीह ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। मज़ीद जो बातें उन्होंने की हैं मैं यकीन रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसको बरकत के तौर पर लेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, मिसकंसेप्शंस हैं, वो दूर हो जाएंगी और आपका जो तस्वुर खुदा है, कई लोगों का जो कॉन्सेप्ट है खुदा के लिए वो भी दुरुस्त नहीं है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तस्वुर खुदा है, वो दुरुस्त होना चाहिए। शुक्रगुजारी करते हैं। अब हमारे साथ जनाब पाशा साहब भी जैसा कि तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी हमारे नाजरीन की मज़ीद रहनुमाई फरमाएँ ताकि लोग पाकरू से मामूर हों, रूह कुद्स का बपतिस्मा पाएँ। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है तो लाजिम है कि आप पाकरू का बपतिस्मा भी पाएँ। और जिस तरह शागिर्द 120 की जमात ईद पेंतीकोस्त के मौका पर रूह कुद्स से भर गए और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी, उसी तरह आपका भी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी पाशा साहब। शुक्रिया भाई साहब। जी जी वेलकम। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ नाज़रीन से। अगर आप खिदमत में हैं, कोई भी मिनिस्ट्री है आपकी, जी 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 आपकी मिनिस्ट्री उतनी देर तक फ्रूटफुल हो ही नहीं सकती जब तक रूह कुद्स आपकी ज़िंदगी में ना। आमीन जी। दैट्स राइट। आप अंजील सुनाते हैं, आप गाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि अंजील जो है बाइबल मुकद्दस जिसे हम कहते हैं, अंजील कहते हैं। पहली बात यह है कि ये रूह कुद्स की तहरीक से लिखी गई है। इसका मुसन्निफ होली स्पिरिट है। बिल्कुल ठीक है, ये रूह का इल्म है। सही सही फरमाया। और इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए भी रूह कुद्स का होना जरूरी है। एग्जैक्टली। जिस जबान में लिखी गई। बेशक मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है सही। जो बहुत ज्यादा डिग्री, जिस तरह भाई साहब ने दर्शन साहब ने कहा, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो डिग्रीज जो हैं उनको उस लेवल पर नहीं लेकर के आई। वाह। वो दुनिया का लूम तो पेश कर सकते हैं, लेकिन बाइबल का लूम सिवाय रूह कुद्स की रहनुमाई के आप पेश ही नहीं कर सकते। क्या बात, क्या बात। आप बड़े खादम हैं या आप छोटे खादम हैं, कोई भी है, जी, जी, खिदमत में है। और ये मेरा शख्सी तजर्बा है। और मुझे आज अफसोस उन लोगों पर भी है जो कई लोग दावा करते हैं आज इसको जो है रूह कुद्स का बपतिस्मा होना है, आज इसको होना है। मैं बड़ा एक ऐसी मिसालें थी मेरे पास सामने कि वो एक पादी साहब की जो है वो वाइफ जो है वो ये दावा करती है आज फलाने ने फलां को बपतिस्मा हो जाना, फलां को बपतिस्मा हो जाना। मेरे ख्याल में ये गलत जो है ना तालीम है। ये खुदा का पाक रूह है और कब किसी को टच करता है ये खुदा को पता है, उसको पता है। और मैं पहले भी आपको फरमा रहा था ना, नाजरीन की खिदमत में ये बात हम कर रहे थे कि पानी का बपतिस्मा कोई पास्टर दे सकता है, बिल्कुल सही है। पाक रूह का बपतिस्मा सिर्फ यीशु सिवाय देता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए कोई पास्टर दावा ना करे जी मैं आपको पाक रूह का बपतिस्मा दूंगा, बिल्कुल। ये काम यीशु का है, जो उसका उसको करने दे। अभी हम कई दिनों से ठहरे हुए हैं दुआ में। जी जी ठीक है। कि जब ईद पेंतीकोस्त हो तो खुदा का पाक रूह जो है उन लोगों पर भी नाज़िल हो जो अभी तक इस नेमत से महरूम है। गुड 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 गुड। और मैं समझता कि जब ईमानदार दुआ करेंगे तो यकीन देना खुदा नहीं है। यस, ये हमें शफायत करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करनी उसकी चाहिए देन है। जी, ये उसकी और ठहरना चाहिए। जो शुरू में और बात मैं अक्सर लोग जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर वो समझते हैं कि शायद खत्म हो गया साडा काम, हम पादरी की गल मान ली या जो भी हमने वो हाँ किया। जी, बस। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। ये तो भी आगाज है इसके ना। आगे रूह उसका बिल्कुल, बपतिस्मा बिल्कुल, है, फिर उसकी रूह की नेमतें हैं, बिल्कुल। फिर रूह का फल है, अभी हम बात कर रहे थे। जी, जी, बिल्कुल। और रूह उसकी नेमतों के बारे में जब बात करते हैं, आज हर बंदा, अफसोस की बात ही जी। है, आज हर बंदा यही उस नेमत के लिए कोशिश है कि मैं बस हथ रखा तो फलाना जड़ा ना ठीक हो जाए। जी 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 जी। यार बाकी जो नेमतें हैं कभी उन्होंने भी फिक्र की थी। उन्होंने भी फिक्र कर। ठीक है, आप बोले खुदा मुझे अलमियत का कलाम दे, वाह वाह वाह, मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकूं, क्या बात। मुझे दानिश अता फरमा। वाह। हर बंदा इसी फिक्र में है, हर बंदा यही चाहता है वो लोग की मेरी पहचान जो फलाना पादरी शिफा। फलाना ना वो बदरुआ करदा है, वो बदरू स्पेशलिस्ट है, वो फलाना स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट। सो ये आज अफसोस की बात ये है कि कोशिश करें, मैं अपने खादम भाइयों से भी कहूँगा कि आपकी कलीसिया में ये नेमतें परेड होनी चाहिए, और खाली एक ही नेमत एक ही नहीं होनी चाहिए। और उस नेमत के बारे में बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई है। जी, जी। और लिखा हुआ है कि जिसकी बात मैं कर रहा था, हवाला बोल दीजिएगा सर। हाँ जी,
पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथिस की कलीसिया के नाम, जी उसका 12वां बाब जब 4 आयत से 11वीं आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर रूह कुद्स की वो 9 नेमतें हैं। ठीक है जी, उसमें मैं एक पढ़ने लगा हूँ। नामी, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, शिफा देने की तौफीक दी है। ठीक है जी जी जी, लाइसेंस नहीं मिले। यानी मतलब कि आपके पास वो कि जी मैं हीलर हूँ। हाँ, सही है सही है। यानी मतलब कि खुदा ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दे दिया। वाह 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 वाह। ठीक है, तौफीक तो दी आपको है। तौफीक दी है ये यहाँ। उसकी मेहरबानी है, उसका आप रहम, किस वो पर किसी को भी दे सकता है। सही, किस पर आप भरोसा कर रहे हैं? सही। तौफीक पर। जी 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 हाँ, हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए, जी। शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सी हम पढ़ ही लेते हैं मेरे ख्याल में नेमतों को। जी लिखा है 4 आयत से, नेमतों तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए जी। होता है। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफिक अलमियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। वाह, जिसको चाहता है जो बांटता है। बिल्कुल रूह कुछ ही बांटता है, जी बिल्कुल सही। राइट। कोई इंसान दावा नहीं करता। जी 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 और हम देखते हैं कि आज कलीसिया में भाई साहब ये फुकदान ये है कि ये हम पढ़ते तो हैं लेकिन ऑपरेट नहीं होती है। अगर ऑपरेट होती भी हैं तो सिर्फ 2 ही बातें हैं, शिफा देने की या मौज़ की कुदरत, और बाकी सारा कुछ है नहीं। नजरअंदाज कर दिया जी। बाकी हमें बड़े कलाम पढ़ना है या ना है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो यही होती है, मैं बस हाथ रखा तो बंदा रहना ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमारी अपनी प्रमोशन हम समझते हैं ना कि जी हमारी मकबूलियत हो रही है, हम मशहूर हो रहे हैं, फेम हासिल करने के लिए लोग करते हैं। हमें खुदाम को जलाल देना है। मुकद्दसा मरियम के शख्सियत से हम सीख सकते हैं। उसने कहा मेरी जान खुदाम की बढ़ाई बढ़ाई, करती उसने अपनी बढ़ाई नहीं की। हम ये इसलिए कहते हैं कि हमारी बढ़ाई होनी चाहिए, आज लेकिन इंसान अपनी बढ़ाई हमें खुदाम की बढ़ाई करनी। बहुत शुक्रिया दोनों पादरी साहबान का। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम जिसको आप सुन रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, और खुदा का पाक रूह हमें सिखा रहा है अपने कलाम के वसीला से कि हमें पाक रूह के बपतिस्मे की ज़रूरत है। क्योंकि बेशुमार लोग जैसा कि समझते हैं कि पाक रूह का बपतिस्मा सबको नहीं होता, ये सबको होता है। जैसे बारिश की निशानी बादल हैं, बादल आते हैं हम कहते हैं जी बारिश होगी, तो पाक रूह के बपतिस्मे की निशानी गैर ज़ुबान है। जैसा पादी साहब ने फरमाया, अमाल की किताब के शुरू में भी हम देखते हैं वहाँ पर रूह कुद्स का नज़ूल हुआ, 120 की जमात ज़ुबानें बोल रही थी, फिर 10वें बाब का जिक्र हुआ, और भी मुख्तलिफ़ जगहों पर हम देख सकते हैं कि खुदा के पाक रूह का नज़ूल जहाँ भी हुआ है लोगों ने गैर ज़ुबानें बोली हैं। तो इसलिए इसका एक्सपीरियंस करें, और चर्च कलीसिया जो मौजूदा हालात हैं, इन मौजूदा हालात में सिर्फ वही कलीसियाएँ कायम रहेंगी जो रूह से मामूर हैं। ये हमें याद रखना है, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो इतना आसान नहीं जी है। जी 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 जी। और क्योंकि हम बहुत तेज़ी से यीशु मसीह की आमद सानी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इब्लीस, मुखालफ मसीह, दुनिया, कौमें, ईमानदारों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। हमारे लिए चैलेंज होंगे, मुनादी करना, खिदमत करना, चर्च चलाना। तो वही कलीसियाएँ कायम रहेंगी, वही ईमानदार कायम रहेंगे जो पाक रूह से मामूर है। क्योंकि पाक रूह में दिलेरी बख्शता है, पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, और पाक रूह इंचार्ज होना चाहिए। क्योंकि जिन कलीसियों में, जिन ईमानदारों की ज़िंदगी में, जिन ख़ानदानों में पाक रूह इंचार्ज है, वो ख़ानदान तरक्की करते जा रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और उन कलीसियों में जहाँ पाक रूह का नज़ूल हुआ है, जो पाक रूह के बपतिस्मा जिनको मिला है, उन कलीसियों में आज भी शिफा का काम भी हो रहा है, मुआज़ात का काम भी हो रहा है, रूहानी तरक्की भी हो रही है, माली तरक्की भी हो रही है, और वो कलीसियाँ बढ़ती जा रही हैं, मजबूत होती जा रही हैं। मैं एक और बात भाई साहब करना चाहता हूँ, सॉरी, ज़रूर ज़रूर, कि याद रखें जब हम आखिर दिनों में हैं, जी और बाइबल मुक़द्दस इस बात को बयान करती है जब रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, जी, तो रूह कुद्स भी साथ उठा लिया। ऐसे ही है बिल्कुल। और फिर मुखालफे मसीह जो है ना जी, क्योंकि रूह कुद्स जो है वो कलीसिया में काम करता है, वाह वाह, और रूह कुद्स कलीसिया के लिए दिया गया है। आमीन, दैट्स राइट। और जब रूह कुद्स से ये लोग ममूर होते हैं, हम देखते हैं जब कलीसिया ही यहाँ पर नहीं होगी
तो फिर रूल उनको कुद्स का उसने तो क्या काम- करना? खुदा का मकसद ही नहीं है उस रूल कुद्स को भेजने का। जी बिल्कुल, वो कलीसिया को दिया वो गया, कलीसिया को empowered किया गया, जैसे शुरू में कलीसिया को हमने दिया बात गया, रूल कुद्स भी उठा लिया जाएगा और फिर कलीसिया- कलाम भी उठा लिया कलाम भी जाएगा, उठा लिया फिर जाएगा। लोग तलाश करते फिरेंगे कलाम, फिर लिखा ना कलाम का कैद पड़ जाएगा, जी जी बिल्कुल, थैंक यू। सुनाने वाला नहीं होगा। जी पाशा साहब, सही फरमाया आपने। और पास्टर जी एक दो हरफी सी बात है, जी अगर ज़िंदगी के अंदर कहीं भी आपकी अपनी एफर्ट से अपने रिसोर्स से अगर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो आज पाक रूह पर इत्मीनान करके आमीन, देखिएगा, आमीन, रिसीव करें जिससे, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ब्रेक थ्रू लाएगा। आमीन, थैंक यू पास्टर दर्शन। अजीज़ों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और मैं आखिर में एक बार फिर अपने दोनों मेहमानों का, जनाब पास्टर दर्शन आपका बहुत शुक्रिया, और बस पाशा इकसा खान पाशा, थैंक यू सो मच। आप दोनों की फैमिलीज़ के लिए हमारी दुआ है, कलीसियों के लिए दुआ है, खुदा आपको बरकत रखी दे। थैंक यू। नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम मुंतज़िर रहते हैं, अपनी आरा से हमें नवाजें, और दुआ के लिए कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह यूट्यूब चैनल PMI TV को सब्सक्राइब कर लें। ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ भी आपको मैसर होंगे, अवेलेबल होंगे, ताकि आप इन प्रोग्राम्स को देख सकें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग PMI। Prince of Peace, Prince of Peace.